جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا. آمین. تیسرا لباس جس کا ذکر اعمال میں خدا یسوع مسیح نے کہا کہ جب وہ آسمان کی بادشاہی کی باتیں اور بھید اپنے شاگردوں پر 40 دن تک کھولتا رہا اور اس کے آگے کہا کہ اس وقت تک ٹھہرے رہو جب تک تمہیں قوت کا لباس. تیسرا لباس, یہ 3 لباس جن کو بلایا گیا ہے خدا پہناتا ہے. پھر وہ برگزیدہ بنتے ہیں, پھر وہ آسمان کی بادشاہی کے لائق ٹھہرتے. آگے بڑھے. ایک چل گیا نہیں, ہم واپس بتی میں جائے گی. اس کی دیر بھی چل گیا. لیکن اس کا منہ بند ہو گیا. اس پر بادشاہ نے خاتون سے کہا اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر باہر اندھیرے میں ڈال. ہاتھ پاؤں میں باندھ دو, اندھیرے میں ہل جو نہیں سکتے. وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا کیونکہ بلائے ہوئے بہت ہیں مگر بلائے ہوئے بہت ہیں لیکن برگزیدہ تھوڑے. پوری دنیا میں تقریباً 5 ارب کے قریب مسیح ہیں, یا 4.5 یا 5 ارب ہیں. سب بلائے ہوئے تو ہیں لیکن برگزیدہ تھوڑے. اب برگزیدگی کو ثابت کرنا ہے. اگر ہماری بلاٹ ہوگی ہمیں ثابت کرنا ہے, ورنہ کہے گا کہ خدا مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دو, آپ پہلے آسمان کی بادشاہ کی خوشخبری سنا. چھوڑ دو ان کو. اس مردے کی بات نہیں ہے, وہ ان مردہ لوگوں کی بات ہے جن کو بلایا اور جنہوں نے عذر پیش کیا. وہ مردہ لوگ. میں اپنے گھر سے رخصت ہو جاؤں, مردہ شخص ہے, بلاٹ کو نہیں جانتا, بلاوے کو نہیں جانتا, خوشخبری سے واقف نہیں ہے, آسمان کی بادشاہ کی خوشخبری سنانے کے وہ لائق بھی نہیں تھا. اس نے اسے کہا کہ جو حل پر ہاتھ رکھ کر پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے وہ آسمان کی بادشاہ کی لائق برگزیدگی دیکھنی ہے. برگزیدگی کے لیے خون سے پاک کیا جاتا ہے. ہماری بلاٹ ہو جائے, کپڑے مل جائے, سب کچھ, پھر ہمیں خون سے ہر روز دھلنا ہے. پہلا پترس پہلا باب اس کی پہلی 2 آیتیں دیکھیں. جی, پہلا پترس پہلا باب اس کی پہلی 2 آیتیں. پترس کی طرف سے جو یسوع مسیح کا رسول ہے ان مسافروں کے نام جو پینتوس, گلتیا, کپدوکیا اور آسیا اور بطنیہ میں جا بجا رہتے تھے, اور خدا باپ کے علم سابق کے موافق, خدا باپ کے علم سابق کے موافق روح کے پاک کرنے سے فرمانبردار ہونے. روح کے پاک کرنے سے کیا ہوئے؟ فرمانبردار ہونے. فرمانبردار ہونے اور یسوع مسیح کا خون چھڑکے جانے کے. روح سے پاک اور یسوع مسیح کا خون چھڑکے جانے سے برگزیدہ ہوئے. برگزیدہ ہوئے. یہ ہے بلائے ہوئے تو بہت ہیں لیکن برگزیدہ تھوڑے ہیں. روح القدس سے پاک جو ہیں وہ تھوڑے ہیں, یسوع کے خون سے دھلے ہوئے تھوڑے ہیں. اور یہ جو روح القدس سے پاک اور یسوع کے خون کے چیٹے جنہوں نے لیے ہوئے ہیں وہ برگزیدہ لوگ ہیں. اب ہمیں برگزیدگی ثابت کرنی ہے اور اس کی کوشش میں لگے رہے. ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے پیچھے نہ دیکھیں, دعوت کو ریجیکٹ نہ کریں. یہ بلاٹ کا پیغام ہے, آسمان کی بادشاہی کا پیغام ہے. وہ ان کو آسمان کی بادشاہ کے بھید بتاتا رہا. آمین, ہلیلویا. اب دیکھیں دوسرا پترس, اس کا پہلا باب, اس میں بڑی پہلے باب کے اندر بہت کمال کی باتیں, بڑی عظیم باتیں ایک شخص کے اور ایک برگزیدہ شخص کے بارے میں لکھی ہے. اس کی 10 اور 11 آیت پڑھیے گا. پس سے بھائیوں اپنے بلاوے اور برگزیدگی اپنی بلاٹ, اپنے دعوت نامے کو
और बरगजीदगी को और बरगजीदी को क्या करो? साबित करने के लिए ये साबित करो कि तुम पाक रूह से क्या हो? पाक हो, और यीशु के खून से क्या हो? धुले हुए हो। साबित करने की ज्यादा कोशिश करो। इस बात को साबित करने की कोशिश हमने करनी है, और वो कोशिश इस तरह से होगी जब आप और मैं खुदा के कलाम से भरे होंगे और खुदा के काम होंगे, और जब तौबा और नजात की मुनादी होगी तो लोग क्या करेंगे? तौबा करेंगे और बॉक्सिंग की तरह बाल कटिंग करते हुए खुदा के कलाम को सुनाएंगे। मेरे पास बड़ी गवाहियां हैं, ऐसी गवाहियां हैं कि मैं ओपनली सुना नहीं सकता। मेरे दिल में आ रहा था कि कुछ दोस्तों को मैंने गवाहियां सुनाई। वो मेरे दिल में आ रहा था कि किसी दिन एक टेस्ट वर्निंग्स के ऊपर हम सेमिनार करें, और मैं अपनी उन तमाम गवाहियों को ये कमरा बंद करके सुनाऊं, ताकि हमारे पास एक रिकॉर्ड आ जाए। हम अपनी बरगजीदी को क्या करें? साबित करें, साबित करने की ज्यादा कोशिश करें। जैसे पहली आयत 2 आयत में लिखा कि वो पाक रूह से क्या है? पाक बरगजीदा लोग जो होते हैं, वो खून के छींटे उनके ऊपर यीशु के होते हैं, और वो क्या कहलाते हैं? अब ये बरगजीदा बादशाह की ज़ियाफत में कैसे दाखिल होते हैं? कपड़े पहने हुए, निजात के कपड़े, और राजबाजी में खिलत, यानी कि यीशु मसीह जो निजात है उसे तौबा की, खुदा ने उसको निजात दी। और राजबाजी का क्या मतलब है? उससे बपतिस्मा लिया। और कुव्वत का लिबास का क्या मतलब है? रूह कुद्दुस का बपतिस्मा लिया। तीन लिबास एक बरगजीदा को पहनना है, लेकिन उसके बावजूद भी बुलाए हुए तेरे हैं, लेकिन बरगजीदा थोड़े हैं। ये आसमान की बादशाह में कैसे दाखिल होंगे? दाखिला है। अगर ऐसा करोगे तो कभी ठोकर न खाओगे, बल्कि इससे तुम हमारे खुदावंद यीशु और मुनज्जी यीशु मसीह की अब्दी बादशाही में बड़ी इज्जत के साथ दाखिल किए जाओगे। अब्दी बादशाही में बड़ी इज्जत के साथ दाखिल किए जाओगे जब हमने कपड़े पहने होंगे, और जिसने कपड़े नहीं पहने होंगे वो बादशाह पकड़ देगा उसको। चलो भाई, तू तो बड़े की तरह गया ये मुर्दास, तू है की तरह गैर कपड़े पाया है। 1900 में हम पढ़ सकते हैं, ये हम नहीं पढ़ेंगे, मैं तुम्हारी आपको बता देता हूँ। वकाश 1900 में वहाँ पर यह है, अगर पढ़ लें आप, अच्छा है 19 बाब है वकाश बाब 9 से पढ़ लें। और उसने मुझसे कहा, लिख, मुबारक है वो जो बर्रा की शादी की ज़ियाफत में बुलाए गए हैं। बर्रा की ज़ियाफत में क्या है? मुबारक है जो बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये खुदा की सच्ची बातें हैं। ये खुदा की क्या है? बर्रा की शादी की ज़ियाफत में बुलाए गए। मुबारक है वो जिनकी बुलाहट हुई है, जो बरगजीदा है, वो बर्रा की शादी में क्या होंगे? शामिल होंगे। और मैं उस सिजदे करने के लिए उसके पांव पर गिरा, और उसने मुझसे कहा, खबरदार ऐसा न कर, मैं भी तेरा और तेरे भाइयों का मुख्य हूँ जो यीशु की गवाही देने का कायम है। खुदा ही को सिजदा कर, क्योंकि यीशु की गवाही नबूवत की है। हाँ ये पढ़ना था। वो शादी वाला तो बहुत इम्पोर्टेंट था। उसके ऊपर कपड़े पहन के कैसे बड़े की शादी में शामिल होना। आओ हम खुशी करें और नहायत शादमान हो और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बर्रा की शादी आ पहुंची और उसकी बीवी ने अपने आप को त्याग कर दिया। उसकी बीवी यानी मैं और आप, हम क्या है? उसकी दुल्हन है कलीसिया। अब तक वो क्या कर दिया? त्याग कर दिया। और उसको चमकदार और साफ मुहीन कतानी कपड़ा पहनने का अख्तियार दिया गया। ये वो कपड़े हैं जिसको पहनकर हम बर्रे की शादी, उस बादशाह की शादी में दाखिल होंगे, और ये आसमान की बादशाही में बर्रे की शादी। आमीन। क्योंकि मुहीन कतानी कपड़े
से मुकद्दस लोगों की रासबाजी के काम मुराद मुकद्दस लोगों की रासबाजी के से काम मुराद है। मुराद। हालेलुया। आज का कलाम मेरे और आपके लिए, ये मेरे और आपकी जो बुलाहट हो गई है, तो हम पीछे मुड़कर हमें बुलाने के लिए जब आए तो हम लापरवाही हमारी जब बुलाहट होगी, दावत हमें मिल गया है, तो हीले बहाने ना करें। हम उसकी बातचीत के लिए उसकी दावतनामे पर लव बैक करें। जीसस मैं तैयार आ रहा हूँ दावत खाने के लिए। ओके, मैं जिन्हें कामों को बाद में करूँगा, पहले काम किसका है? खुदावंद खुशखबरी सुनाने का। खुदावंद हमें फजल दे ताकि आसमान की बादशाह की खुशखबरी हम सुनाते रहे। मसीह की बुनियादी का आगाज ही यही था कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। और फिर लोगों ने कहा कि तू ठहर, तो ऊपर हम देखते हैं शायद के बहुत सारे गुलाम मुआवजे किए। मुआवजे करने के बाद उन्हें उज़र पेश किया कि ऐसे से तू यहाँ पर जाकर और दिन भी रुक जा। तो उसने क्या कहा? मुझे और भी बहुत सारे शहरों में आसमान की बादशाह की खबर सुनानी है। आमीन। हम अपने आप को तैयार करें। खुदावंद यीशु मसीह ने मुर्दों से जिंदा होकर मुझे आपको ये हुक्म हम आप पहला पाव उसकी तीसरी चौथी आयत में दिया है, और ये इरशाद खुदावंद आपको बरकत दें। कोई भी दुआ में रहमत